Hello everyone. Good evening. Welcome to day 12 of induction class. I hope whatever I have taught you all till now, you have already covered it, and be prepared from next week onwards. On every Saturday, you will be having your tests, schedule, and each and everything I already told. By this will everything will be uploaded by this week. That syllabus and schedule, each and everything will be there. So get ready. From next week onwards, we are in the filter out mode, who are going to stay and who are going to go out, like after the induction training is complete. So be serious now, and be on totally on serious mode of learning, क्योंकि आपकी लर्निंग ही आपको आगे लेके जाएगी यहाँ से, राइट? प्लीज कीप दैट इन माइंड, ठीक है? So I hope all are making their notes. I am receiving so many notes and so many whatever the things which I am telling, all are making it very beautifully. It's आप मुझे whatever you are sending, whatever you are doing, you are not doing to please me. You are not doing to show me that okay, whatever you are telling I am doing. No, no, no. Don't be in that confusion. Whatever you are doing for yourself. आप जो भी कर रहे हैं आप अपने लिए कर रहे हैं. आप जो भी सीखेंगे अपने लिए सीखेंगे. आप जो भी पैसे बनाएंगे वो अपने लिए बनाएंगे, ठीक है? इट इज गोइंग टू बी लाइक दैट. सो जस्ट डू whatever it can be for you in the best manner possible. I'm trying my best to make you see the broader perspective of being a trader, and कैसे ट्रेडिंग से आपकी दुनिया बदल सकती है, how you can change your life from trading, and what are the difficulties which you are going to face. मतलब जब आप ट्रेडिंग करते होंगे पहले, आपके लिए डेली का 5% 8% जब निकलता होगा तो आपको लगता होगा यू विल बी फीलिंग लाइक अरे कुछ कमाया ही नहीं है ना. बट ऑन प्रॉपर सेटअप, ऑन प्रॉपर वे, वेटिंग ऑन योर सपोर्ट रेसिस्टेंस एंड ईच एंड एवरीथिंग, और जब उस मेथड पे आप जब ट्रेडिंग कर रहे हैं एंड यू आर वेटिंग फॉर द सेटअप फॉर द इंटायर डे, इवन आप अगर प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट एंड मनी मैनेजमेंट के साथ भी ट्रेड कर रहे होंगे, यू विल बी हैविंग फियर इन योर माइंड कि I have to, because अब you have the pressure, you have the thing in mind that you have to complete your target, like 3%, 2%, 4%, whatever you have decided for yourself. And apart from that, you have that confidence also, and कि either I will give 3% to the market or either I will take 3% from the market. If market has taken 3% for me, okay, fine. Today is not my day. Again, next day, like that. तो इस तरीके से चीजें आपके लिए काफी अच्छे से काम करेंगी आगे जाके, ठीक है? कल कुछ लोग लेक्चर में पूछ रहे थे कि सर हम इंडिकेटर्स के बारे में कब जानना स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तो मोस्टली right now we are understanding we did the first session of identify your purpose. Next we did the session of where to trade, index to focus. Okay, currently we are understanding the trends and breadth, means market breadth topic we are discussing. Okay, after that we will understand about types of trades, type of trading, scalping, swing and all. Then after that types of orders, like in Jirodha mostly people are trading, so Jirodha में क्या types of orders कैसे क्या, वो तो आपको mostly you all know that. Okay, but still I will कि कुछ चीजें हैं जैसे when you will be having good capital in your account and उस समय when you will trade, then at that point of time you have good knowledge about how basket orders are made, how we can trade, how we trail a stop loss, like these things. Okay, उसके बाद the game will start. Future options, I already told, it will be in 4 parts. We will study the entire future options, each and everything about it. Okay, then we will discuss the margin trading. मेरे को पूरा सिलेबस ऐसे दिमाग में पूरा फिट है, याद है मेरे. ओके, देन वी विल लर्न अबाउट द एक्सपायरी लर्निंग्स. ओके, आफ्टर दिस यू ऑल विल बी रेडी टू डू लाइव ट्रेडिंग. देन आई विल टेक यू ऑल daily from morning 9:15 to 11 o'clock, 12 o'clock. You all will be there and I will give you the live experiences of the market. Like we will connect for 15, 20, 30 minutes and we will see how market is working, what is the structure, what way market is working, in what pattern market is working, like that we will follow that structure.
Okay, we will see it so that you can grasp the live feeling that you have learned. Okay. After that, your technical classes will start, like power variables. Okay, fundamentals to focus on. Part one, it will be means different types of variables are there. Variables like volume indicator, you can say, like different types of indicators will be there. These are not the indicators which will give you trade signals. These are the indicators which will make you understand the detailed concept in a very brilliant manner. Okay. After that, you will understand about the directional shift, means market. Like this is the syllabus which already it is done, and I am telling you all from my imagination that what we are going in the sequence. Like this is the sequence from which we are going to study. Okay. Then in that we will study about the directional shift, support, resistance using open interest and पीसीआर. ओके, ओपन इंटरेस्ट एंड पीसीआर को हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे. वहां से सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस कैसे कैलकुलेट होगा, डायरेक्शनल शिफ्ट आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि आगे जाके अल्टीमेटली यू हैव टू बिकम ऑप्शन सेलर, है ना. आगे जाके जब अकाउंट में 1 करोड़ 2 करोड़ आएंगे, ऑटोमेटिकली यू आर गोइंग टू बिकम एन ऑप्शन सेलर. तो ऑप्शन सेलर के लिए बायर की तरह कैंडल में घुसना और निकलना नहीं होता है. ऑप्शन सेलर का गेम दूसरा है, ऑप्शन बायर का गेम दूसरा है. ऑप्शन बायर का गेम है कि तुरंत लो, अपने सेटअप पे ट्रेड लो, जस्ट टेक द ट्रेड ऑन योर सेटअप, इंटर इन इट, मेक प्रॉफिट, एग्जिट. इफ यू आर मेकिंग लॉस, एग्जिट. सेल में क्या है, you have to spend some time in market, you have to understand the direction, and as per the direction of the trend you sell, है ना. और उसके बाद पूरे दिन बैठ के you keep eating the premium decay. पूरे दिन आप बैठ के फिर प्रीमियम डीके का स्वाद लेते हैं, मजा लेते हैं. ठीक है, तो इट इज लाइक दैट. ओके. एंड फ्रॉम देयर अगेन नेक्स्ट टॉपिक विल बी पावर ऑफ वॉल्यूम एंड मोमेंटम इंडिकेटर. ठीक है, वी विल स्टडी दिस पावर ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम इंडिकेटर क्या होते हैं, मोमेंटम इंडिकेटर कैसे काम करता है. देन वी विल स्टडी अबाउट पावर ऑफ टाइम फ्रेम्स, इन विच टाइम फ्रेम वी शुड ट्रेड, like support and resistance, each and everything, which time frame we should draw, which time frame we should follow, like this. Okay. Next, we will understand about the trend. ठीक है, ट्रेंड इज द कोर ऑफ ट्रेडिंग. अगर आप ट्रेंड पकड़ना सीख गए, इन विच डायरेक्शन मार्केट इज गोइंग टू मूव, इन विच डायरेक्शन मार्केट इज गोइंग टू follow, then it's done, it's totally done. Okay. So that will be trend in core of trading. Okay. After that we will study about Dow theory. Okay, मैं लिख नहीं रहा हूँ कहीं पे, just I am telling it because all these things are going to be with you in the written mode also. So why to waste my energy in writing it all again and making you understand these things. So I'm just explaining it in my words, and वैसे भी this recording will be there, so you will be listening it, and after that you will have the syllabus also, so it will, things will be pretty fine. Okay. Next. Wait for 1 second. Yes. So after that, we are going to study about the Dow theory. We will study how Dow theory works, powerful trading concepts of Dow theory. If you are a trader, Dow theory is your Bible. Okay, so you will have to understand about Dow theory. उसके बाद हम लोग फिर प्राइस एक्शन का यूज करके कैंडल स्टिक पैटर्न्स के बारे में पढ़ेंगे. मतलब आई एम टेलिंग यू, आपने जो भी आज तक पढ़ा होगा, जो भी जाना होगा, जो भी किया होगा, दैट इज डिफरेंट. हम जो पढ़ने जा रहे हैं दैट इज कम्प्लीटली डिफरेंट. ठीक है. अब आप सोचिए, इतने सारे टॉपिक्स के पढ़ने के बाद कैंडल स्टिक पढ़ने जा रहे हैं, मतलब things are going to be on next level, like I can tell you that. So we will study about the price action, candlestick patterns, trend line, each and everything we will study. Then after that we will study about price action patterns. We will like when market makes lower low, when market makes lower higher high, what are the price action as per price action. बोलते हैं ना, price action is the king. So you how to intercept the price action, in what way you are going to intercept the price action, like that. Okay. Then we will come to basics of technical analysis. From there the technical analysis will start. We will study about moving average, and with the help of moving average identifying the trend.
We will study about the moving average, and with the help of moving average, we will try to identify the trend. Then I will tell you about Bollinger Band, its range identification and trend confirmation concepts जो Bollinger Band में आते हैं. Okay. After that, we will study about RSI oscillator. Okay. RSI oscillator basically tells you the identifying the selling and buying zones, buying area basically. Okay. After that, we will study about stochastic, which helps in finding the direction, momentum, and hidden divergences. You will think like, sir, how we are going to apply all these technicals on a same chart? No, you have to study all in different time frames. You have to apply different indicators. Okay, like you are trading in 15 minutes. What you will apply? You will apply Bollinger Band. You will apply your what we say RSI, and you will apply your MACD. Like that's it. In 1 hour time frame, you will apply your moving average. Okay, and there you will find your support and resistance, and like this, and you will find your opportunity of trade signals either in 15 minutes and 5 minutes. I will teach it all. मैं सब आपको बताऊंगा कैसे कैसे क्या करना है. ठीक है. But the base should be super strong. Like जब base strong है ना, मेरा ये मानना है, एक पेड़ को बनने में सालों साल लग जाते हैं क्योंकि उसकी जड़ बहुत मजबूत होनी चाहिए. तो पहले पेड़ की ग्रोथ ऊपर नहीं होती है, पहले पेड़ की ग्रोथ नीचे होती है. एक पौधा जो एक सैपलिंग जो होता है, इट्स ग्रोथ इज डोंट डायरेक्टली अपवर्ड्स, फर्स्ट इट्स ग्रोथ इज डाउनवर्ड्स, बिकॉज इट हैज टू मेक इट्स बेस. इफ द बेस इज स्ट्रांग, a banyan tree can be there even for thousands of years, hundreds of years. आप यूएस जाएंगे, यूएस में आपको ऐसे ऐसे पेड़ दिखेंगे जो शायद 5,000 6,000 8,000 ईयर्स से भी पुराने हैं, एंड दे आर स्टिल स्टैंडिंग एंड कंप्लीटली ग्रेट इन अ ग्रेट शेप. ठीक है. तो यू हैव टू मेक योर बेस सुपर स्ट्रांग. आपको अपना बेस स्ट्रांग बनाना पड़ेगा. ओके. उसके बाद वी विल स्टडी अबाउट डाइवर्जेंसेज, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ बीइंग अ टेक्निकल ट्रेडर. ठीक है, कि डाइवर्जेंस पकड़ना है ना. मतलब इंडिकेटर आपको एडवांस में डाइवर्जेंसेस दिखाएगा. मार्केट हाई बना रहा है बट आरएसआई लो बना रहा है, मैकडी कुछ और अलग लो बना रहा है, वहां उसकी अलग फॉलोइंग ट्रेंड लाइन बन रही है. फ्रॉम देयर यू विल बी एबल टू, वहां से आपको पता चलेगा मार्केट कुछ और कर रहा है, टेक्निकल इंडिकेटर्स कुछ और कर रहे हैं, एंड सेंटिमेंट, मैंने कल भी बताया था, सेंटिमेंट ड्राइव द टेक्निकल्स. ठीक है, सीधी सी बात है. तो ये नहीं है कि टेक्निकल सीख गए तो इट इज गोइंग टू वर्क फॉर यू फॉर like I can say 70-80% of the time technicals are going to tell you each and everything, but 20% of the time they will also fail. वहां पे your sixth sense will work, है ना. और इन सब के अलावा, apart from all that, even you learn each and everything, you have developed your sixth sense, but you have no trading mindset, means your psychology is not correct. आप कितना भी कुछ सीख जाओ, आप बंटाधारी करोगे. ठीक है, आप फिर कुछ नहीं कर पाओगे फिर. तो प्लीज कीप दैट इन माइंड. उसके बाद वी विल स्टडी अबाउट VWAP. देन आफ्टर दैट वी विल identify proper how to set stop loss, real definition of a stop loss, possible targets using ATR, and how to use ATR for trailing the SL and all. ठीक है. फिर उसके बाद हम स्टॉप लॉस के बारे में जानेंगे, कैसे टारगेट निकालते हैं, कैसे सपोर्ट निकालते हैं, फिबोनाची रिट्रेसमेंट, गोल्डन रेशियो, ईच एंड एवरीथिंग वी विल स्टडी इन फिबोनाची इन डिटेल. Then again, my one of the best 51 फेवरेट्स स्कैल्पिंग टेक्निक, मतलब 50 हैं वो तो उतना तो मैं नहीं पढ़ाऊंगा आपको. जो बेस्ट है उनमें से 15-20 स्कैल्पिंग टेक्निक्स, बिकॉज एक ट्रेडर के लिए जो माला माल वीकली वाला जो टाइम होता है ना, जैसे कल एक माला माल वीकली वाला टाइम था, आज एक माला माल वीकली वाला टाइम था. ठीक है, हर दिन माला माल वीकली नहीं बनोगे आप बीइंग अ ट्रेडर हु इज डूइंग स्कैल्पिंग एंड मेकिंग 2% 3% ऑन डेली बेसिस, 1% ऑन डेली बेसिस, यू विल हैव टू बिकम ए स्कैल्पर. मतलब डेली के हिसाब से इतने पॉइंट आपने कैप्चर किए और उसके बाद यू आर मस्त एंजॉइंग योर लाइफ. ठीक है. तो फॉर दैट यू विल हैव टू लर्न दिस स्कैल्पिंग टेक्निक. देन वी विल स्टडी अबाउट दिस स्कैल्पिंग टेक्निक. आफ्टर दैट we will reach in the last leg where we will study about option buying, selling, and its strategies, like all by Ironfly, but Condor, whatever they are. Okay, and this will be divided into two parts. Once this all is complete, after that you will have your
all the tests evaluations and as per score जो उस सेट क्राइटेरिया के ऊपर होंगे वो रह जाएंगे, जो नहीं होंगे वो अपने बॉन्ड अमाउंट के साथ बाहर हो जाएंगे। ठीक है, इट विल बी लाइक दैट। एंड जो रह जाएंगे उस उनको फिर ट्रेडर योद्धा के प्लेटफॉर्म पे हाउ टू डू ट्रेड, हाउ टू डू व्हाट, हाउ टू अप्लाई द ऑर्डर्स, व्हाट आर द थिंग्स यू हैव टू डू, मतलब फिर जॉब रिलेटेड चीजें आपको सिखाई जाएंगी। ठीक है। एंड मोस्ट प्रोबेबली वेरी सून वी आर गोइंग टू हैव आवर लर्निंग एंड अर्निंग प्रोग्राम फ्रॉम डिफरेंट साइड। आपको वहाँ पे कुछ भी पे नहीं करना होगा, आप लाइव ट्रेडिंग में आप सारे लोग डायरेक्टली ज्वाइन होंगे। ठीक है, और वहाँ पे डेली यू कैन डू योर लाइव ट्रेड बाय द ट्रेडिंग सिग्नल्स जनरेटेड फ्रॉम देयर, मैं ही दूंगा उसको। एंड हार्डली फॉर 2-3 hours we will trade and you can complete your 1% 2% target and you can close your, like that it can go, okay, it can go for years and years and years, so that as you have joined, जो लोग बाहर हो जाएंगे वो उस ग्रुप में नहीं रहेंगे। जो लोग कंफर्म्ड एज एन एम्प्लॉय रहेंगे आफ्टर 3 months ऑफ प्रोबेशन, मतलब यहाँ से जो टेस्ट वगैरह होने हैं उसके बाद, ठीक है, एंड फिर उन लोगों को प्रॉपर उस ग्रुप में, there you are doing job for us also, you are doing your own trading also and life is going on, it will be like that, जिंगा लाला वाली बात। so this is the thing, this is the entire journey that we are going to cover। और एक बात, मुझे ना, मतलब ऐसे होता है ना, वो लाइक हर में कोई काम करने की आदत नहीं है। आई डोंट डू डैट इन वे। मेरे लिए है कि मेरा मन होगा आई विल टीच, मेरा मन नहीं होगा आई विल नॉट टीच। मेरा मन होगा जब तक आई विल नॉट गेट सेटिस्फाइड कि हाँ मैंने ये चीज़ अच्छे से कर दी, आई विल कीप डिगिंग इन दैट थिंग। तो इस तरीके से है। तो आप, मेरे लिए ये नहीं है कि मेरे को आपको बस जल्दी जल्दी सब पढ़ा देना है, ये पढ़ाना भी क्यों है यार, नोट्स बने हुए हैं, पीडीएफ पढ़े हुए हैं, आप ले लो पढ़ लो खुद से। ठीक है, मेरी मेरी क्या जरूरत है। ठीक है, बट अपार्ट आई डोंट वांट दैट, मतलब मेरा ये मानना है, मैं किसी की क्वेरी का भी कोई जवाब नहीं दूंगा, मेरी बात खत्म होने दीजिए पूरी। टाइम मिलेगा फिर दूंगा, नहीं तो फिर नेक्स्ट डे। मेरा ये मानना है कि आपको, मैं एक अच्छा ट्रेडर बनाने की कोशिश कर रहा हूं, मेरे पास 3 महीने का समय है। 9th November इज दी दिवाली, सो बिफोर नवंबर आई एम ट्राइंग, मतलब नवंबर में जाने से पहले मेरी ये कोशिश है कि अगस्त सितंबर अक्टूबर इन 3 महीने में वे फिनिश ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, एंड आप प्रॉपर एक अच्छे ट्रेडर इस 3 महीने में बन जाओ। आप फर्दर टेस्ट में कैसा परफॉर्म करोगे, क्या करोगे, कितने स्कोर लेके आओगे, आपका फाइनल सिलेक्शन कितना होगा, आप कितने सैलरी पे काम करोगे, ये सब फ्यूचर है, दिस इज डेस्टिनी। आप हमारे साथ कंटिन्यू करोगे नहीं करोगे, ये दिस इज ऑल डेस्टिनी, इसको छोड़ दो आप अभी। अभी 3 महीने, दीज 3 months, जस्ट ट्राई टू गिव योर बेस्ट। आप बस अपना बेस्ट देने की कोशिश करो। यहां से अगर इन केस आप बाहर जाते भी हो तो आपके मन में ये दुख ना रहे कि मैंने कुछ पाया नहीं, आपने पाया। ठीक है, आपने सब पाया। और एक बात, मैंने इस ग्रुप में से ऑलरेडी जो मेरे पास 148 लोग हैं, उसमें से मैंने 8-10 लोगों को वो आइडेंटिफाई एंड रेक्टिफाई कर लिया है। दे आर प्रॉब्लम सीकर्स, वो प्रॉब्लम सीकर्स हैं। तो भाई आप अपना बॉन्ड अमाउंट लीजिए और आप यहाँ से आपको हम टाटा बाय बाय कर देंगे। ठीक है, तो ऑलरेडी दे हैव बीन गिवन स्टर्न वार्निंग्स, अगर वो उसको फॉलो नहीं करते हैं तो वी आर मोर देन हैप्पी टू, मतलब पीपुल, कुछ लोगों की ऐसी मोनोपोली है भाई, आपने अगर बॉन्ड अमाउंट दिया है, आपने 1 लाख रुपए दिए तो आपने टीम को खरीद नहीं लिया है, आपने मुझे नहीं खरीद लिया है भाई। वो अल्टीमेटली, वो वैसे भी आपने मुझे हमें दिया नहीं है, वो इट इज द सिक्योरिटी, वो ऑलरेडी आपके पास चला जाएगा। अगर बॉन्ड अमाउंट नहीं होता तो शायद आप इतने सीरियसली यहाँ पे पढ़ नहीं रहे होते, अगर स्टाइपेंड नहीं मिल रहा होता तो आप इतने सीरियसली इस चीज़ को फॉलो नहीं कर रहे होते। मेनी थिंग्स आर देयर। ठीक है, बहुत सारी चीजें, बट उसमें भी कुछ लोग हैं यार, मतलब उनको कितना भी कुछ भी समझा दो, किसी भी लेवल पे समझा दो, उनका दिमाग किसी और ही जोन में चल रहा होता है। ठीक है, फिर वैसे लोगों से हाथ जोड़ लेना चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच, यू बी ऑन योर वे, आई बी ऑन माई वे, लाइक अ हाईवे, इट शुड बी लाइक दैट। ओके, तो ऑलरेडी 8-10 पीपल्स आर आइडेंटिफाइड एंड आपको पता भी नहीं चलेगा, दे विल बी थ्रोन आउट फ्रॉम द दिस वेरी स्पेशल। भाई मैं अपने स्टार्टअप के साथ, मैं अपने, मैंने फिर से मैंने बोला है, मैं आपको एज ए एम्प्लॉय ट्रीट नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको एज अ, मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको अपना एज अ सुपर ट्रेडर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, आई रियली वॉन्ट यू टू बिकम अ रियल एंड गुड ट्रेडर। ठीक है, ताकि आप दुनिया में कहीं भी रहें, आप ये ना दें कभी किसी को गाली, कभी किसी को ये ना बोलें कि यार, मुझे किसी ने सिखाया, बड़ा बेकार सिखाया है, मैं तो कुछ जानता ही नहीं। आप जहां भी बैठें,
अगर आप टॉप 100 टॉप 200 ट्रेडर्स की लीग में भी बैठे हुए हैं तो आपके पास उस लेवल की नॉलेज हो, ताकि आप बेखौफ बिंदास अपने आप को एक्सप्रेस कर सकें। आप खुद के लिए अपना एक एंटरप्रेन्योरशिप खड़ा कर सके। आप खुद के लिए, आप खुद का अपना यूट्यूब चैनल बनाएं, आप खुद उस पर वीडियोस डालें। आप खुद अपने लिए, आप जैसे मैं आपको सिखा रहा हूं वैसे आप हजारों लोगों को सिखाएं। इट विल सॉल्व द पर्पस। कब कौन कहाँ से कैसे किस लेवल पे निकल के आ जाएगा, नो वन नोज। ठीक है, आप अपना रास्ता बहुत अच्छे से तय कर सकते हैं। मेनी थिंग्स यू कैन डू, बट फॉर दैट आपको सीखना होगा, आपको समझना होगा चीज़ों को। ठीक है, तो हम लोग बिल्कुल, मैं तो बिल्कुल हड़बड़ाने वाला नहीं हूँ। मेरे को 1 महीना और लग जाएगा, चलेगा। ठीक है, मेरे को क्या है, मैं आपको सिखा रहा हूँ, सिखाने के पैसे भी दे रहा हूँ। ठीक है, तो आई एम नॉट इन हड़ी, नो हड़ी, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, आपको बहुत ज़्यादा सेटअप इंडिकेटर, जैसे कल एक धीरज है, उसके मतलब जो क्वेश्चंस थे वो मुझे परेशान करते रहे, इवन आफ्टर द सेशंस, आफ्टर द इंटायर, मतलब कल रात को भी, प्रॉपर टुडे मॉर्निंग ऑल्सो, मतलब, लेकिन मैं किसी को कुछ बोलता नहीं। ठीक है, बट उसके क्वेश्चंस वेयर लाइक कि ही जस्ट वांट्स टू गेट द सेटअप, गेट द थिंग्स, लर्न एंड जस्ट दैट्स इट, है ना। तो दीज आर द माइंडसेट्स, यू कांट चेंज इट, है ना। तो मैं वही बोलना चाहता हूँ, इफ वी आर हैविंग 148 पर्सन्स, दे हैव 148 माइंडसेट, एंड आप किसी के माइंडसेट को बदल नहीं सकते। हाँ, आप उसको अलाइन करने की कोशिश कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे एक मिशन बना लूँ कि मुझे 148 में से 148 लोगों को 10 इयर्स का CJR अचीव कराना है। मैंने मिशन बना लिया, आपने बनाया कि नहीं बनाया वो आपके ऊपर है ना। ठीक है, वो तो आपके ऊपर है कि आप उसमें शामिल होना चाहते हो या नहीं होना चाहते। ठीक है, दैट इज योर थिंग। और मेरे को ऐसा नहीं है, बहुत से लोग हैं, मतलब आउट ऑफ 148, 120 प्लस लोग ऐसे हैं, दे हैव गिवन मी द CAGR, they have given the entire calculation, and really they have totally appreciated. Sir, the perspective of trading has completely changed. Now I am seeing trading in a different way, and the way you have expressed your imagination that after 10 years life can be like this, I have also started believing it, and मैं I am trying my best, जी जान लगा के, कि मुझे उसको अचीव करना है। ठीक है, मैं ये नहीं कहूंगा कि वो अचीव कर जाएंगे, बट दे हैव स्टार्टेड। यू दोज हु हैव रियली thought about their life after 5 years, 10 years, really, and they have started, इट्स वेरी गुड थिंग, वो बहुत अच्छी बात है ना। और उसमें कंटिन्यूअसली आपको ऐसे ही आगे बढ़ते जाना है। बाकी मैं हमेशा आपके साथ हूं, किसी भी तरीके से आपके साथ हूँ। ठीक है, आई विल ट्राई कि जो भी लोग हैं, क्योंकि नाउ ऑब्वियसली मेरे दिमाग में ये प्लान लेआउट पूरी तरीके से बन रहा है कि हम लाइव ट्रेडिंग करेंगे। ठीक है, लाइव ट्रेडिंग में ऑल आर वेलकम। मेरा काम होगा डेली के 2%, 3%, जो मैं अपने लिए टारगेट फिक्स करूंगा उतने ट्रेड में कर लूंगा। आपको बता दूंगा, आप अपना टारगेट बुक करोगे, उसके बाद टर्मिनल बंद हो जाएगा। इट विल बी लाइक दैट। ठीक है, तो उस पर भी डिटेल डिस्कशन हम लोग करेंगे, एक बार वो सारे ब्लूप्रिंट प्लान वगैरह रेडी हो जाने दीजिए, फिर फर्दर। ठीक है, अभी आप बस लेकिन मैं एक चीज दावे के साथ कहता हूं, बीइंग एज एन एम्प्लॉय, जो मैं आपको सिखा रहा हूं, या इन फ्यूचर कभी भी कोई ट्रेडिंग क्लास होगी, कभी भी कुछ लोग आएंगे सीखने, वो कितना भी सीखेंगे तो मतलब ये कहना गलत होगा कि मैं इसमें पार्शियलिटी कर रहा हूं या ऐसा कुछ नहीं। बट शायद कहीं ना कहीं वट एवर आई एम मेकिंग यू लर्न एंड वट एवर आई विल मेक देम लर्न, उसमें थोड़ा डिफरेंस तो होगा। ठीक है, देयर मे बी आई एम माई 75%, 80%, बट हेयर आई एम माई 100%। ठीक है, बिकॉज आई कांट टेक द रिस्क, बिकॉज हेयर माई स्टार्टअप इज इन्वॉल्व, माई जॉब इज इन्वॉल्व, माई मनी इज इन्वॉल्व, एवरीथिंग इज इन्वॉल्व, है ना। एंड आई डोंट वॉन्ट टू यू टू बी इन एनी डार्कनेस, मैं आपको कभी किसी डार्कनेस में नहीं रखना चाहता। आई वॉन्ट यू ऑल टू लर्न द थिंग्स इन द बेस्टेस्ट मैनर पॉसिबल। चाहे उस टॉपिक को आप 50 बार बोलो समझाने के लिए, मैं 50 बार रेडी हूँ उसको समझाने के लिए। तो आगे जाके ऐसे बहुत से ऐसे टॉपिक्स आएंगे जो एक बार में आपको समझ में नहीं आए। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, आप अपना डाउट सेशन लिख के डायरेक्ट टीम को सेंड कर दीजिए। ठीक है, कि मुझे इस टॉपिक में डाउट है। अगर 15-20 लोगों का डाउट होगा तो उस टॉपिक को फिर से रिवाइज किया जाएगा। ठीक है, वी विल डू दैट, है ना। तो आई एम ट्राइंग कि आप एक अच्छे ट्रेडर बन जाएं इन 3 महीनों में। आप क्या बनना चाहते हैं, इट्स अप टू यू। ओके, तो चलिए, नाउ आई एम गोइंग टू शेयर द स्क्रीन एंड लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। एंड
by tomorrow or day after tomorrow, I am hoping my mother will get discharged. That is a huge and very, very beneficial thing for me. That's why my mindset is now very positive, and I am feeling really well. And thank you all for your loveliest blessings, prayers. यकीन कीजिए, आपने मेरी माँ के लिए किया है, तो जब भी जहां भी जरूरत होगी, मैं आपकी माँ के लिए भी, आपके फादर के लिए भी खड़ा हूँ और हमेशा खड़ा रहूंगा, चाहे जिस भी पर्पज से हो, चाहे जैसे भी हो। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू बी देयर। ठीक है, एंड थैंक यू सो मच। वट जो भी आपने, मतलब इंसान को ना पैसे की जरूरत नहीं होती, सारे रिसोर्सेज पूरे हो जाते हैं, बट साथ में कोई खड़ा हो ना, इफ समवन इज स्टैंडिंग विथ यू, सपोर्टिंग यू इमोशनली, इट इज वेरी बिग थिंग। मेरे साथ तो 150 लोगों का परिवार खड़ा है। ठीक है, दैट इज अ वेरी बिग थिंग, है ना। तो वो कहीं ना कहीं वो ब्लेसिंग्स आपके लिए बहुत काम आती है। ठीक है, तो वी वेयर स्टडिंग अबाउट द मार्केट ब्रेड्थ। मुझे जान के बहुत खुशी हुई, बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने मार्केट ब्रेड्थ को लाइव मार्केट में भी समझने और जानने की कोशिश की। अब वो प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूएंट्स के हिसाब से मार्केट की मूवमेंट को देख रहे हैं। बैंक निफ्टी इतना गिरा, उसके ये कॉन्स्टिट्यूएंट्स इतने निगेटिव में थे सर, इतने, निफ्टी इतना गिरा है, इसके टॉप कॉन्स्टिट्यूएंट्स ये निगेटिव में थे सर। उन्होंने प्रॉपर मुझे नोट्स बना के लिख के भेजा है कि मार्केट आज 2% डाउन थी, इसमें ये इसके टॉप 10 कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, टॉप गेनर्स एंड लूजर्स हैं, ये इस तरीके से निगेटिव में थे। दे आर रियली गोइंग वेरी वेल। ठीक है, एंड रियली अप्रिशिएटेड। अगर आप नहीं कर रहे हैं, स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि यहीं से बहुत से लोग होंगे जो आगे निकल जाएंगे और बहुत होंगे जो वहीं रह जाएंगे। ठीक है, तो स्कूल की क्लास नहीं है, जिंदगी की क्लास है ना। आज तक अपने आप को आपने कैसे चीट किया है, अपने आप को कैसे आपने लेजी रखा है, अपने आज का टारगेट कल पे छोड़ा है, परसों पे छोड़ा है, शायद बचपन से यही करते आ रहे हैं। ठीक है, अरे देख लेंगे, एग्जाम के टाइम में पढ़ लेंगे, चल हो जाएगा, अरे एग्जाम ही तो है, पास कर जाएंगे, जैसे तैसे करके सब हो गया। बट ये जिंदगी की लड़ाई है, दिस, ये आपके एग्जिस्टेंस की लड़ाई है, ये आपके अस्तित्व की लड़ाई है। दिस इज द फाइट फॉर योर एग्जिस्टेंस। तो यहाँ पे अगर आप अपने आप को चीट करेंगे या धोखा देंगे, तो जिंदगी आपको धोखा देगी। ठीक है, आप में से बहुत से लोग होंगे जो 10 ईयर्स के बाद, 5 ईयर्स, 10 ईयर्स के बाद बहुत अच्छी जिंदगी जी रहे होंगे, जहां भी होंगे बहुत अच्छे तरीके से होंगे। और बहुत से ऐसे भी होंगे जो उन चीजों को नहीं फॉलो कर पाएंगे, वो जहां है शायद वहीं रह जाएं, या उससे भी बुरी हालत में चले जाएं। तो हम डेस्टिनी को कोसते हैं कि यार किस्मत ने साथ नहीं दिया, ये हो गया, वो हो गया। मैंने क्या कल बोला था ना, हम ब्लेम डालना बड़ा जल्दी सीख जाते हैं। आई वी जस्ट ट्राई टू ब्लेम, बट क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, उस चीज को हम एनालाइज करना छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से चीजें हमारे लिए गड़बड़ हो जाती हैं। ठीक है, तो स्टडी कीजिए जैसे कर रहे हैं, दिस इज रियली गोइंग टू चेंज एवरीथिंग फॉर यू। ओके, चलिए, अब टुडे वी आर गोइंग टू लर्न व्हाट्स ड्राइविंग द इंडेक्स। मैंने सिलेबस मुजबानी बता दिया है, रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा, ध्यान में आ जाएगा। ठीक है, बाकी पीडीएफ भी पहुंच जाएगी। व्हाट्स ड्राइविंग द इंडेक्स, इंडेक्स को क्या ड्राइव कर रहे हैं। व्हाट्स ड्राइविंग द इंडेक्स, इंडेक्स को क्या क्या ड्राइव कर रहा है, तो आपको समझना पड़ेगा। सबसे पहले, यू ट्राई टू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ वेटेज, जो कि मैंने आपको समझाने की भरसक कोशिश की है। यू ट्राई टू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ वेटेज। सेकंड, यू हैव टू एनालाइज व्हाट हेवी वेट कैन डू। हेवी वेट समझ में आ रहा है, सब लोगों को हेवी वेट समझ में आ रहा है। हेवी वेट कैन डू, जिनका मैक्सिमम कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, जैसे कि हम बैंक निफ्टी की बात करते हैं, मैंने आपको 5 स्टॉक बताए थे, आपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स भी देखे होंगे। HDFC, ICICI, एक्सिस, कोटक, SBI। ठीक है, ये हेवी हेवी वेट है। उसी तरीके से निफ्टी में इंफोसिस, रिलायंस, अडानी, लाइक ऑल जो भी हैं। ठीक है, उस तरीके से। तो व्हाट हेवी वेट कैन डू, हेवी वेट क्या कर सकते हैं। ठीक है, क्या इंडेक्स को, यहां पे आपको अपने आप से एक सवाल पूछना है, यू हैव टू आस्क अ क्वेश्चन फ्रॉम योर सेल्फ। कैन इंडेक्स बी मैनिपुलेटेड यूजिंग हेवी वेट्स, यूजिंग हेवी वेट्स। अपने इंडिया में ये खूब होता है, इंडेक्स मैनिपुलेशन।
ठीक है, अपने इंडिया में इंडेक्स मैनिपुलेशन बहुत होता है। ठीक है, कैसे होता है, आसानी से आप जान सकते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा होता है। कैन इंडेक्स मैनिपुलेटेड यूजिंग हैवी वेट? हाँ बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, आप देख लो, कभी कभी आप देखोगे क्या कि बैंक निफ्टी में सारे बैंक्स निगेटिव में हैं, एचडीएफसी और एक्सिस नहीं मार्केट को टांग रखा है ऊपर की तरफ। प्रॉपर दो बैंक में भाई म्यूचुअल फंड वाले बैठे हुए हैं, उनको मार्केट गिरने देना नहीं है, पूल ऑफ मनी बस पिलाए जा रहे हैं, पैसा पिलाए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, लाइक दैट दे आर पंपिंग मनी, पंपिंग मनी, पंपिंग मनी। ठीक है, कभी कभी आप देखोगे सारे बैंक्स ऊपर हैं, एचडीएफसी और कोटक या आईसीआईसीआई नीचे है, मार्केट को नीचे टांग रखा है। ठीक है, तो मैनेजमेंट इज वेरी ब्यूटीफुली डन इन आवर कंट्री। क्यों? क्योंकि क्या है, यहाँ पे स्टॉक मार्केट का जो कंट्रोल है ना, वो सेलेक्टेड लोगों के हाथ में है। ठीक है, ये कहना गलत नहीं होगा, सेबी बहुत भरपूर प्रयास कर रही है कि ये चीज ना होने पाए, मतलब आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है, यू कांट इवन इमेजिन कि कोई बैठ के कितना पैसा छाप रहा है, डेली के डेली मिलियंस ऑफ डॉलर्स छाप रहा है इंडियन करेंसी में, मिलियंस ऑफ डॉलर्स। ठीक है, मुझे ज्यादा नहीं, मुझे बस 5,000 करोड़ रुपए भी पहुंच जाए ना मेरे पास, ठीक है, मतलब मैं क्या कर सकता हूँ इससे। ठीक है, यू कांट इवन इमेजिन, मतलब मैं किस किस इंडेक्स को तो नहीं हिला सकता, बट स्टॉक्स के वाड़े न्यारे कर सकते हैं आप। ठीक है, मेनी थिंग्स आर गेटिंग डन। ठीक है, स्टॉक मार्केट की दुनिया में जिसके पास पैसा है वो किंग है, और यहाँ पैसे से ही पैसा बनता है। 20,000, 25,000, 50,000 वाले यहाँ पे पैसा नहीं बना सकते। इट कहना ये लगता है कि बड़ा वो है, लेकिन नहीं, बहुत डिफिकल्ट काम है। हाँ, 1 लाख इज अ सर्टेन अमाउंट। अब कुछ दिन के बाद जब ये प्रॉपर सेबी ने जो कंसल्टेशन पेपर लाया है, और वो जब जैसे ही रेगुलेट होगा, क्वांटिटी लिमिट बढ़ जाएगी। देखिए, बायर को कहीं दिक्कत नहीं है। ठीक है, बायर को दिक्कत है ही नहीं, बायर को दिक्कत हो भी नहीं सकती। ठीक है, ये सारी रेगुलेशन, ये सारी चीजें क्यों की जा रही है? सेलर को रोकने के लिए। क्योंकि अब रिटेलर सेलर बन रहा है, और जो बिग मनी है, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, वो नहीं चाहते हैं कि रिटेलर सेलर बने। ठीक है, आज आप 5 लाख रुपए में एक लॉट सेल कर देते हैं, कल आपको 15 लाख रुपए चाहिए होंगे एक लॉट सेल करने के लिए। समझ रहे हैं आप इस बात को? ट्राई टू अंडरस्टैंड गेम कहाँ चल रहा है। गेम चल रहा है कि सेलर नहीं बनने देना है रिटेलर को, क्योंकि अगर वो सेलर बनना सीख गया तो फिर पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, और बहुत सारे रिटेलर जो पैसे कमा रहे हैं सेलिंग में, उससे कहीं ना कहीं बिग मनी को डेंट आ रहा है। ठीक है, तो वो ये चीज नहीं चाहता। अरे हर चीज का एक गेम होता है, हर एक गेम सेट है। ठीक है, एवरी गेम इज सेट। ठीक है, आपको पता है, जियो आया, जियो ने मोबाइल और सिविलाइजेशन, मतलब मोबाइल की क्रांति में एक अलग तरीके का वो कर दिया पूरा। पहले 2-3 साल लोगों को फ्री में सब बांटा, सब दिखाया। ठीक है, अब आज देखिए, दे हैव द, इसीलिए कहा जाता है किसी भी इंडस्ट्री में एक इंसान की मोनोपोली नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आज वो मोनोपोली दिख रही है, वो जब चाहते हैं अपने प्राइसेस हाई कर देते हैं, जब चाहते हैं बढ़ा देते हैं। ठीक है, क्योंकि इंडिया के 80% टेलीकॉम सेक्टर को वही कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, तो यूं ही हर चीज नहीं होती। सेबी कंसल्टेशन पेपर लेके आई है, आप उसको डिटेल्ड में एनालाइज करेंगे, तो वो मैक्सिमम चीज वो रिटेलर को समझाना चाहते हैं, वो रिटेलर को बताना चाहते हैं। मतलब, और एक तरफ तो आप बोलते हैं कि हम रिटेलर को बचाना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं, तो फिर ड्रीम इलेवन क्या है? उस पर तो कोई बात नहीं कर रहा। ठीक है, माई इलेवन सर्कल क्या है? उस पर तो कोई बात नहीं कर रहा। वो तो अंधा गैम्बल है, वहां तो जबरदस्त गैम्बल चल रहा है, उसकी बात क्यों नहीं कर रहे कोई? ठीक है, तो सिंपल सी बात है, हमारी गवर्नमेंट कभी चाहती नहीं कि मिडिल क्लास के हाथ में पैसा साइड इनकम के फॉर्म में आए कहीं से। अगर साइड इनकम के फॉर्म में आपके पास पैसा आने लग गया, तो आप गवर्नमेंट की थोड़ी सुनोगे, फिर आप दुनिया घूमोगे, ट्रैवल करोगे, लाइफ को अपने हिसाब से एंजॉय करोगे, फिर आप टैक्स थोड़ी दोगे यार। अमीर लोग टैक्स थोड़ी भरते हैं। इस देश को सर्विस सेक्टर चला रहा है, अमीर लोग थोड़ी चला रहे हैं, बेवकूफ़ी है। कोई टैक्स भरता ही नहीं है। ठीक है, मतलब करोड़ों करोड़ के ट्रांजेक्शन हैं, टैक्स जाते हैं लाखों में। ठीक है, भाई इंडिया में टैक्स बचाने का बड़ा अच्छा सिस्टम है। 5 लोग घर में, सबका 30-30 लाख का पैकेज है, सब लोग आराम से 1.5 करोड़ का ईयरली कमाते हैं। ठीक है, सबको टैक्स ना देना पड़े, उस इसके बाद, और इंडिया में उसके लिए भी लॉ है, सबने अपने आप को HUF में डिक्लेयर कर लिया, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, बस बात खत्म हो गई। वहां पे टैक्स कहाँ गया? खत्म, कहानी खत्म। ठीक है, तो टैक्स को भी बचाने के हजार रास्ते हैं, वो मैं आगे जाके आपको बताऊंगा कि कैसे टैक्स को इवेट करते हैं।
अपने देश में एक कानून निकलता है तो उसको तोड़ने के लिए 1000 लॉ ऑलरेडी रेडी बैठे होते हैं उसको बाईपास करने के लिए। ठीक है, तो ये सेबी का कंसल्टेशन पेपर आया है, ये आया है, वो आया है, ये आता रहेगा। एक टाइम में बैंक निफ्टी में 75 की क्वांटिटी में ट्रेड होती थी, फिर हल्ला हुआ, अरे बहुत पैसा बना रहा है डिटेलर, ये कर रहा है, वो कर रहा है। फिर इन्होंने क्या किया, घटा दिया, धीरे धीरे घटा के 15 क्वांटिटी पे लेके चले आए। नाउ अगेन अब उसको फिर से बढ़ा के 75 लेके जा रहे हैं। ठीक है, तो गेम को समझो। गेम ये है कि चाहते ही नहीं कि ये रिटेल सेलर बने कभी, क्योंकि वो सेलर बन रहा है तो बिग मनी को डेंट आ रहा है। बिग मनी को डेंट नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर उसको डेंट आएगा तो फिर मार्केट, जैसे फॉरेक्स में क्या है, फॉरेक्स में अगर कोई कहे ना कि मैं मार्केट को मैनिपुलेट कर सकता हूँ, उसको चप्पल खोल के मारो। इट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। देयर आर ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का मूवमेंट है वहां पे। उतना डॉलर किसी के पास है ही नहीं पूरी दुनिया में जो इस फॉरेक्स को मूव करा सके, किसी के बस का नहीं है। बट इंडियन मार्केट इज इजीली मैनिपुलेटिव, आराम से मैनेज किया जा सकता है, और डेली होता है ये काम, 20 में से 15 दिन तो होता ही है। दैट्स वाई आई टोल्ड यू, हमें बिग मनी को फाइट नहीं करना है, हमें बिग मनी से लड़ना नहीं है। हमें छोटे छोटे इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़े बन के बस टुकड़े उठाने हैं और भागना है। वी हैव टू डू लाइक दैट। ठीक है, ऑलवेज कीप दैट इन माइंड। ठीक, सोचिएगा जरा इस चीज को, है ना, कि रेट से भी चाहती है रिटेल इन्वेस्टर बच जाए, तो ड्रीम इलेवन और माई इलेवन सर्कल क्या है, व्हाट इज दिस। ठीक है, उस पर किसी का ध्यान नहीं, छोड़ो, खैर हमें उससे क्या रहना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब जैसा कि आप जानते हैं, आप एडवांसेज और डिक्लाइन देख सकते हैं स्टॉक्स में। मैंने आपको ये देखना बता दिया है, कुछ नहीं करना है, rediff.com पे जाना है। और रेडिफ, अब तो रेडिफ है, मनी कंट्रोल है, investing.com है। अब मेरी आदत है ना कि मैं जिस चीज को पकड़ लेता हूँ उसको लास्ट लास्ट तक लेके चलता हूँ। तो मैं शुरू से, जब मैं ट्रेडिंग में आया था उस समय ये वेबसाइट बड़ी फेमस थी, rediff.com। अब ये मेरी पसंद है तो मुझे आज भी ये पसंद है, नहीं तो इससे भी अच्छे अच्छे इंफॉर्मेशन देने वाले भी वेबसाइट्स हैं, investing.com है, मनी कंट्रोल है, आप इस पे भी जाके फॉलो कर सकते हैं, सेम चीज दिखाएंगे आपको। ठीक है, ये इस तरीके से होता है। ठीक, तो आप एडवांसेज मतलब कितने स्टॉक ऊपर हैं, डिक्लाइन कितने स्टॉक नीचे हैं। ठीक है, मैंने आपको कल इसका रेशियो भी बताया था। एडवांस बाय डिक्लाइन जो है वो डिसाइड करता है कि मार्केट का स्ट्रेंथ क्या है या मार्केट की वीकनेस क्या है, मार्केट आज स्ट्रांग है या वीक है, वो एडवांस और डिक्लाइन से पता चलता है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आपको ध्यान से देखिएगा मैं जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। गूगल पे जाके आपको सर्च करना है एनएससी एडवांस, ओके, डिक्लाइन, इसको सर्च करना, एनएससी एडवांस डिक्लाइन। ठीक है, आपके सामने एक साइट खुलेगी, ये वाली, एडवांसेज एंड डिक्लाइन की। ठीक है, अब इसमें आप सेलेक्ट कर लीजिए ईयर 2024, ये एक महीने पहले का डेटा लेके चलता है। ठीक है ना। अब आप ईयर सेलेक्ट कर लीजिए, और यहां से रेशियो को देखिए, ये क्या है, व्हाट इज दिस, ये जिस दिन ट्रेडिंग हुई है उसका डेटा है। व्हाट इज दिस, ये जिस दिन ट्रेडिंग हुई है ये उसका डेटा है। समझ रहे हैं आप, एडवांसेज बाय डिक्लाइन रेशियो निकल के आता है। मैंने क्या कहा था आपसे, जितना ज्यादा रेशियो बड़ा होगा, जितना ज्यादा आपका जो रेशियो है वो बड़ा होगा, मतलब 1 से बड़ा है, 1.2, 1.4, 1.6, मार्केट की स्ट्रेंथ क्या होगी, उतनी ज्यादा होगी। अब आप देखिए, पूरे जुलाई में मैक्सिमम टाइम मार्केट कहाँ हाई पे हाई बनाता चला गया है। क्यों, क्योंकि वहां पे जहां पे 0.67 है उस डेट पे आप मार्केट को देखिएगा, मार्केट ने क्या किया है उस दिन। बड़ा इंटरेस्टिंग होगा आपके लिए ऑब्जर्व करना इस चीज को। ठीक है, जहां पे 0.46 है उस दिन मार्केट ने क्या किया है, जहां पे ये 2.41 बन रहा है उस दिन मार्केट ने क्या किया है। ठीक है, यहां से आप एडवांसेज एंड डिक्लाइन को देख सकते हैं। तो मैं अभी आगे, जब मैं आगे हम जाएंगे तो मैं अभी तो मैं उतनी मेहनत नहीं करता, पहले मैं प्रॉपर एक्सेल शीट बनाता था।
ठीक है, आज के दिन एडवांसेस डिक्लाइन, ये आज के दिन एडवांसेस डिक्लाइन है, वहां से एक प्रॉपर फिर मार्केट का कर्व निकल के आता था कि मार्केट कौन सा कर्व फॉलो कर रहा है। इसके बारे में डिटेल में मैं आपसे कल फिर इसके बारे में डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो यहां से आप एडवांसेज और डिक्लाइन का पूरा डेटा देख सकते हैं। ठीक है, और फिर ये बहुत जरूरी है, ये पास्ट डेटा आपको दिखा रहा है, ठीक है, बट यहां से मार्केट का ट्रेंड आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, अभी बस मैं आपको इसके ऊपर ऊपर से लेके जा रहा हूँ, डिटेल्ड इसकी एनालिसिस हम लोग फिर कल करेंगे। ठीक है, एडवांसेज एंड डिक्लाइन आप यहां से फिर फर्दर देख सकते हैं। आई होप आपको ये सारी चीजें पहले से थोड़ा मोड़ा तो पता होंगी। ठीक है, चलिए। अब आपने ऑलरेडी अपना कॉन्स्टिट्यूएंट बनाया हुआ है। ठीक है, लाइव मार्केट जब चल रहा हो, ठीक है, तो उसमें आप एडवांस बाय डिक्लाइन ये जरूर देखिए। ठीक है, एडवांस बाय डिक्लाइन जो है वो आपको बताएगा कि मार्केट का स्ट्रेंथ क्या है। ये मैंने पहले भी आपको बताया, व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ द मार्केट और व्हाट इज द वीकनेस ऑफ द मार्केट। एंड ऑलवेज सी, हमेशा देखा करो, गेनर्स देख रहे हो अगर या लूजर्स देख रहे हो, तो ये देखा करो कि आपने जैसे निफ्टी 50 देखा है, निफ्टी 50 में आपने टॉप 10 स्टॉक्स बनाया हुआ होगा। आप उसमें देखो क्या जो आपने टॉप 10 स्टॉक बनाया उसमें से कोई टॉप गेनर में है या नहीं, या टॉप लूजर में है या नहीं। इस चीज को ऑब्जर्व करो आप। ठीक है, आपको ये चीज वहां पे बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करनी है। इन जितना ज्यादा आप ऑब्जर्व करोगे, जितना ज्यादा आप इसको देखते जाओगे, उतना ज्यादा आपके लिए ये हैबिचुअल होता चला जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट इंडिकेशन यहीं से मिलता है, कितने एडवांसेज हैं स्टॉक्स और कितने डिक्लाइन पे हैं। वहां से आपको एक फर्स्ट हिंट आराम से मिल जाएगा, आप इजीली समझ सकते हो कि मार्केट वहां पे मैनिपुलेट हो रहा है, या मार्केट पॉजिटिव जा रहा है, या मार्केट निगेटिव जा रहा है। क्योंकि मार्केट कैन नेवर गो बिलो बियॉन्ड इट्स फंडामेंटल्स। फंडामेंटल्स के अगेंस्ट कोई कैसे जा सकता है यार। ठीक है, आप ये सोचो ना, 50 आदमी है, अगर 30 आदमी यस बोल रहा है और 20 आदमी नो बोल रहा है, तो जीत तो 30 यस की ही होगी ना हर हाल में। लेकिन फिर भी अगर नो वाला जीत रहा है, मतलब कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। तो आपको वहां पे क्या होना है, आपको अलर्ट होना है, आपको उस रीजन को ढूंढना है जिसकी वजह से ये नो वाला जीत रहा है। अगर आप ये रीजन ढूंढना शुरू हो गए, उसके हिसाब से आपने उसकी कार्ड निकाल ली, आप वेट करना स्टार्ट करके आप जीतना शुरू कर जाओगे मार्केट में। यू विल स्टार्ट गेनिंग द टॉप एडवांटेज। ठीक है, आप आराम से फिर फर्दर बहुत आगे निकल जाओगे। ठीक है, चलिए, इस पर डिटेल डिस्कशन और मैं करूंगा, ये इसको मैं यहाँ नहीं छोड़ रहा हूँ, बट अभी बस इसको टच किया है हमने। डिटेल्ड इसके बारे में फिर हम लोग कल जाएंगे। एक और साइट मैं आपको बता रहा हूँ, दैट इज traderscockpit.com। पहले तो इनका साइट जो था वो फ्री हुआ करता था, अब इन लोगों ने अपने साइट को पेड कर दिया है वैसे। लेकिन कोई बात नहीं है, आपको फ्री में भी बहुत कुछ ये बता देगा। ठीक है, आपको क्या करना है, इस पे जाना है, फिर यहाँ सर्च करना है ये ट्रेडर्स कॉकपिट। ठीक है, इस पे जाना है, इस पे जाके मार्केट में जाना है। ठीक है, ये भी बड़ी अच्छी साइट है भाई, है ना। ये आपको प्रॉपर सारे एनालिसिस देगी, टॉप गेनर्स, टॉप लूजर्स, ठीक है, 52 वीक हाई, 52 वीक लो, निफ्टी का इंडिसेज, ये सारे फ्रेश लॉन्ग्स कहाँ बन रहे हैं, फ्रेश शॉर्ट्स कहाँ बन रहे हैं। ठीक है, शॉर्ट कर लॉन्ग अनवाइंडिंग कहाँ हो रही है, अभी लाइव आता तो ये सब दिखा रहा होता। ठीक है, ये सब आपको दिखाता है यहाँ पे। ठीक है, अब हम इसमें क्या करेंगे, हम जाएंगे किसमें, चार्ट में, हम जाएंगे चार्ट में। ठीक है, और चार्ट में जाके ये देखिए, इसको देखिए लाइव चार्ट। 1 मिनट, ये सॉरी, लाइव एडी रेशियो, इसको देखिए, ये समझाना था मुझे। ठीक है, एडी का मतलब एडवांस एंड डिक्लाइन। ध्यान से समझिएगा जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं, कभी नहीं पढ़ा होगा आपने ये सब।
ठीक है, देखिए ये जो ग्रीन लाइन है, ये जो आपकी ग्रीन लाइन है, ये बताती है नंबर ऑफ स्टॉक्स जो अप हैं। ठीक है, और ये जो रेड लाइन है, ये बताती है नंबर ऑफ स्टॉक्स जो डाउन है। मतलब ये आपका एडवांसेज हो गया, और ये आपका फिर फर्दर क्या हो गया, डिक्लाइन हो गया। ठीक है, ट्रेंड को समझिए, ट्रेंड को समझना है। ट्रेंड को कैसे समझना है? अगर, ठीक है, ग्रीन नीचे है, रेड ऊपर है। ठीक है, ग्रीन, ये ग्रीन नीचे है और रेड ऊपर है, मतलब जैसे यहां देखो ग्रीन नीचे है, रेड ऊपर है, मतलब मार्केट कहां होगा, डाउन ट्रेंड में होगा। अब आप देख लो मार्केट डाउन ट्रेंड में है कि नहीं है अभी। क्लियर कट मार्केट डाउन ट्रेंड में है। ठीक है, कैसे, ध्यान से समझो मैं जो समझा रहा हूं। दिस इज द गोल्ड माइन ऑफ द इंफॉर्मेशन। आप देखो पूरे दिन निफ्टी गैप अप था टुडे, आज मार्केट में। निफ्टी के चार्ट पे आप जाना, निफ्टी का चार्ट खोलना और वहां पे देखना आप, निफ्टी पूरे दिन कहाँ था, ऊपर टंगा हुआ था, पॉजिटिव में था 250 पॉइंट। ठीक है, बैंक निफ्टी भी पूरे दिन, हम निफ्टी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, बैंक निफ्टी की फिर बाद में बात करेंगे। ठीक है, अब आप देखो निफ्टी ऊपर क्यों था, क्योंकि ग्रीन ऊपर था और रेड कहाँ थे, नीचे थे। ग्रीन ऊपर था, रेड नीचे थे, तो मार्केट अप ट्रेंड में होगा। ठीक है, इजिली आपने यहां से देखा मार्केट अप ट्रेंड में था। जैसे जैसे ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, क्रॉस करने लगे, क्रॉस ओवर होने होना स्टार्ट हुआ। ठीक है, एक मिनट, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड इट इन अ वेरी डिटेल्ड मैनर। ठीक है, जैसे जैसे इसका क्रॉस ओवर स्टार्ट हुआ, जैसे ही ग्रीन ने रेड को क्रॉस किया और रेड ने ग्रीन को क्रॉस किया और उसका इनवर्स बना, एग्जैक्टली आप देखना इस टाइम पे मार्केट में कौन सी कैंडल बनी है। ठीक है, यहां से फिर डाउनफॉल स्टार्ट हुआ, फिर निफ्टी भी आज निगेटिव में बंद हुआ है, बैंक निफ्टी भी आपको आज फिर फर्दर निगेटिव में बंद हुआ है। क्यों निगेटिव हुए, क्यों निगेटिव हुए, साफ साफ यहां से पता चल रहा है, ग्राफ बता रहा है, चार्ट बता रहा है, चार्ट इज टेलिंग एवरीथिंग। चार्ट जो है वो सब बता देता है, चार्ट टेल्स यू इच एंड एवरीथिंग। ठीक है, स्टॉक्स में आप देखिए 665 स्टॉक्स एडवांस कर रहे थे, 1368 स्टॉक्स जो है वो डाउन डाउन साइड में थे। तो ऑटोमेटिकली, ऑटोमेटिकली यहां से साफ साफ पता चलता है कि मार्केट क्या है, निगेटिव साइड में जा रहा है। ठीक है, अब आप देखिए मैंने आपको क्या बोला, ध्यान से समझिएगा। जब ग्रीन नीचे आ जाए, रेड ऊपर आ जाए, मतलब मार्केट डाउन ट्रेंड में चला जाएगा। आप देखो एग्जैक्टली वहां से निफ्टी निगेटिव में गया और निगेटिव 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 होते हुए फिर आज निगेटिव में यहां पे ये क्लोज हुआ। सो दिस इज योर एडवांस डिक्लाइन रेशियो चार्ट। आप इसको मार्केट के टाइम पे प्रॉपर अच्छे से मॉनिटर कर सकते हैं, यू कैन मॉनिटर इट। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, अब हम आगे देखेंगे एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट नेक्स्ट चार्ट में, दिस वन। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, एडवांस डिक्लाइन चार्ट दिखा रहा हूं मैं आपको, एडवांस डिक्लाइन चार्ट, दिस इज एडवांस डिक्लाइन चार्ट। ध्यान से समझिएगा जो समझा रहा हूं, एडवांस डिक्लाइन चार्ट है वो। जो पीछे आपने देखा वो था एडवांस बाय डिक्लाइन का रेशियो। ठीक है, जो पीछे आपने देखा है, वन सेकेंड, जो ये आपने देखा है ये वाला, दिस इज एडवांस बाय डिक्लाइन का रेशियो। अभी आप जो देख रहे हैं ये इसका कॉम्बिनेशन है, ये ग्राफ एडवांस डिक्लाइन का जो रेशियो है और उसके बाद निफ्टी का चार्ट। ठीक है, जो ऑरेंज लाइन है, दिस ऑरेंज लाइन, ये एडवांस डिक्लाइन का रेशियो है, एडवांस बाय डिक्लाइन रेशियो। एंड जो ब्लू लाइन है वो निफ्टी है, जो ब्लू लाइन है वो निफ्टी है। गेम समझो, क्या गेम है, व्हाट इज द गेम। गेम ये है कि अगर एडवांस और डिक्लाइन ऊपर जा रहा है तो निफ्टी भी ऊपर जाएगा। ठीक है, अगर एडवांस और डिक्लाइन ऊपर जा रहा है तो निफ्टी भी ऊपर जाएगा, और अगर एडवांस और डिक्लाइन नीचे जा रहा है तो निफ्टी भी नीचे जाएगा।
ठीक है, समझ में आया? एवरीवन अंडरस्टूड इट? इफ एडवांस एंड डिक्लाइन इज गोइंग अप, मार्केट विल हैव टू गो अप, निफ्टी को भी ऊपर जाना पड़ेगा। अगर एडवांस एंड डिक्लाइन इज गोइंग डाउन, निफ्टी विल ऑल्सो हैव टू गो डाउन। लेकिन अगर एडवांस एंड डिक्लाइन अप है, मतलब ये एडवांस एंड डिक्लाइन जो है ये अप है, ठीक है, स्मॉल शेयर्स में बाइंग आ रही है, स्मॉल शेयर्स में बाइंग आ रही है, लेकिन जो बिग शेयर्स हैं, बिग स्टॉक्स हैं, उसमें अगर सेलिंग आ रही है, तो वहां पे क्या हो रहा है? वहां पे डाइवर्जेंस क्रिएट हो रहा है, और यही डाइवर्जेंस आपको बताता है कि मार्केट में स्ट्रेंथ है या वीकनेस। अब जैसे निफ्टी में हम बात करते हैं, ठीक है, मान लीजिए वी आर टॉकिंग अबाउट निफ्टी, और निफ्टी में वी आर सीइंग दैट छोटे छोटे स्टॉक्स में बाइंग आ रही है, इन स्मॉल स्टॉक्स वी आर गेटिंग बाइंग, बट बड़े स्टॉक्स में मैसिव सेलिंग है, और एडवांस एंड डिक्लाइन अप है। अप में मैंने बताया है मार्केट अप ट्रेंड जाएगा, और डाउन है अगर एडवांस एंड डिक्लाइन, तो उस केस में क्या होगा? डाउन ट्रेंड आएगा। मैंने आपको ये चीज बताई है, ये ऑरेंज लाइन जो है वो एडवांस एंड डिक्लाइन है, ठीक है। अब आप देखिए, पहले आज के दिन चार्ट पे क्या हुआ, आपने सबने चार्ट देखा ही होगा आज। ब्लू लाइन इज निफ्टी, ऑरेंज लाइन इज एडवांस बाय डिक्लाइन, ठीक है। पहले एडवांस एंड डिक्लाइन अप था, तो निफ्टी भी अप था, ठीक है। धीरे 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 आपका एडवांस एंड डिक्लाइन का जो रेशियो है वो नीचे आना स्टार्ट हुआ, निफ्टी भी उसको फॉलो करते हुए फिर क्या हुई? नीचे आई। अगर एडवांस एंड डिक्लाइन नीचे है, निफ्टी ऊपर है, मतलब क्या है? वहां पे क्लियर डाइवर्जेंस है, ठीक है। अगर एडवांस एंड डिक्लाइन अप है, निफ्टी डाउन है, इफ एडवांस एंड डिक्लाइन इज अप, निफ्टी इज डाउन, मतलब क्या? डाइवर्जेंस है, कभी भी बाउंस आ सकता है, बाउंस कैन कम एनी टाइम। तो हम वहां पे अलर्ट हो जाएंगे, भाई सेलिंग पोजीशन में घुसना ही नहीं है, वी डोंट हैव टू गो इन द सेलिंग पोजीशन, ठीक है। बट अगर एडवांस एंड डिक्लाइन डाउन है, निफ्टी पॉजिटिव में थी, बट आपका एडवांस एंड डिक्लाइन कंसिस्टेंटली आपको बता रहा है कि नो नो नो, मार्केट इज गोइंग डाउन, मार्केट इज गोइंग डाउन, मार्केट इज गोइंग डाउन, बट आप फिर भी क्या थे? अप ही जा रहे थे। तो यहाँ पे अगर आपको ये देखना आ रहा होता, आप कंसिस्टेंटली देखते कि एडवांस एंड डिक्लाइन इज गोइंग डाउन डाउन डाउन, निफ्टी अभी भी अप है, मतलब किसी भी समय गिव अप कर सकता है। आया ना गिव अप करने, फॉलो करने आएगा ही आएगा, इट हैज टू कम टू फॉलो इट, इट हैज टू कम टू फॉलो इट, ठीक है। मैं सच बता रहा हूं, मैं जो आपको बता रहा हूं या सिखा रहा हूं, दुनिया में आपने कहीं किसी किताब में इस चीज को ना पढ़ा होगा ना देखा होगा, ठीक है। और कीप दैट इन माइंड, ठीक है। कभी कभी क्या होगा, समटाइम्स व्हाट विल हैपन, समटाइम्स हमारे लिए सिर्फ दो चार्ट इंपॉर्टेंट है इस साइट के, एक ये चार्ट और दूसरा ये वाला चार्ट, थर्ड चार्ट से हमें उतना मतलब नहीं, ठीक है। कीप दैट इन माइंड। कभी कभी क्या होगा, इन सम केसेस यू विल सी निफ्टी इज अप, निफ्टी इज अप, निफ्टी अप है, लेकिन आपका एडवांस बाय डिक्लाइन जो है वो डाउन है। निफ्टी इज अप बट योर एडवांस एंड डिक्लाइन इज डाउन, ठीक है। एडवांस एंड डिक्लाइन जो है वो डाउन पे है, इसका मतलब क्या है? क्यों? यहां पे क्वेश्चन उठता है, व्हाई निफ्टी इज अप? ऐसा जब सिनारियो बनेगा, तो आप देखना, जो पावरफुल स्टॉक्स होंगे ना निफ्टी के, पावरफुल स्टॉक्स होंगे निफ्टी के, वो ऊपर की तरफ जा रहे होंगे, वो आपको ऊपर की तरफ जा रहे होंगे। व्हेन पावरफुल स्टॉक्स विल बी गोइंग अप, तो निफ्टी ऊपर ही जाएगा, ऑटोमेटिक सी बात है। उस केस में फिर आपका एडवांस एंड डिक्लाइन जो है वो नीचे है, कोई मैटर नहीं करता है, ठीक है। तो आप ट्रेडिंग कॉकपिट की जो साइट है इसको डेली मॉनिटर कीजिए, ठीक है, ये बहुत जरूरी है, याद रखिएगा। इस चार्ट में, ऊपर वाले चार्ट में सम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स मैं बोल रहा हूं, आप नोट कर लीजिएगा अपना, जब आप रिकॉर्डिंग को सुनेंगे, ठीक है। जब ग्रीन एंड रेड आर कमिंग नियर, ग्रीन एंड रेड आर कमिंग नियर, जब ग्रीन और रेड एक दूसरे के आसपास आ रहे होंगे, वो क्लियर इंडिकेशन होगा मार्केट इज वीक। और जितना ज्यादा ग्रीन और रेड एक दूसरे से दूर जा रहे होंगे, उतना ज्यादा पता चलेगा मार्केट इज स्ट्रांग, ठीक है। सेकंड चार्ट में आइडियली
हमेशा 80% ऑफ द टाइम ये सब काम करेगा, 20% धोखा देगा भाई। मार्केट में कुछ भी 100% नहीं है, इस चीज को हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, नथिंग इज परमानेंट इन दिस मार्केट, कीप दैट इन माइंड। ठीक है, थोड़ा पानी पीता हूँ फिर आगे बात करते हैं। ठीक है, चार्ट वन, ये चार्ट वन जो है, इसमें ग्रीन और रेड का जो गेम है उसको देखना है मार्केट के, लाइव मार्केट के टाइम पे। चार्ट टू में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो डिस्कस कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। आइडियली, फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर इंग्लिश जो साउथ बेल्ट के लोग हैं उनके लिए, आइडियली वेयर एवर एडवांसेज एंड डिक्लाइनिंग इज गोइंग, निफ्टी शुड ऑल्सो गो। मतलब ऑरेंज इज योर एडवांस बाय डिक्लाइन एंड ब्लू इज योर निफ्टी। जहां भी एडवांस एंड डिक्लाइन जाएगा, निफ्टी को भी वहीं जाना होगा। वेयर एवर एडवांस एंड डिक्लाइन इज गो, निफ्टी इज ऑल्सो गोइंग देयर। ठीक है, अगर ऐसा नहीं हो रहा है, इफ दिस इज नॉट हैपनिंग, देन फाइंड द रीजन व्हाई इट इज हैपनिंग। ठीक है, उस रीजन को पता करो। अगर उस रीजन को आप पता करने लग गए, यू आर अ ट्रेडर। आप फिर ट्रेडिंग ट्रेडर के जो सेंसेज हैं वो आप डेवलप कर पा रहे हो। कैसे पता करोगे? सिंपल सी बात है, हेवी वेट स्टॉक्स हैं, उनको मैनेज किया जा रहा होगा तभी ये हो रहा है। ठीक है, चार्ट कभी झूठ नहीं बोलता। चार्ट यहीं से प्रॉपर इंडिकेशन आएगा। मैं हम देख रहे हैं भाई, इट इज कंसिस्टेंटली कमिंग डाउन और निफ्टी अप है, मतलब वी आर गेटिंग द अलर्ट, हमें अलर्ट मिल रहा है। और 80% ऑफ द टाइम ये अलर्ट वार्निंग सिस्टम काम करेगा। दिस अलर्ट वार्निंग सिस्टम इज गोइंग टू वर्क। ठीक है, बस आपको इसको मॉनिटर करते रहना है। ठीक है, कौन कहता है कि वो अर्ली वार्निंग सिस्टम मार्केट में कोई नहीं देता? देता है भाई। पता चलना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि हाँ ये चीज हो रही है। ठीक है, आप फिर पता करो अगर ऐसा हो रहा है कि एडवांस एंड डिक्लाइन जो है वो आपको अलाइन नहीं हो पा रहा है निफ्टी से, या निफ्टी एडवांस, क्योंकि दिस इज द बॉस, निफ्टी इज द स्टूडेंट या एम्प्लॉय, जो भी बोल लो। जहां जहां बॉस जाएगा एम्प्लॉय को भी वहीं जाना है, स्टूडेंट को भी वहीं, जहां टीचर जाएगा वहां स्टूडेंट जाएगा। इफ टीचर इज गोइंग डाउन, student has also to go down. If teacher is going down, student is going up, then reason, what is the reason? क्या रीजन है जो ये इतना कूद रहा है, इतना उछल रहा है? किस रीजन से ये ऊपर जा रहा है? दिस यू हैव टू ऑलवेज फाइंड। और जब आप ये ढूंढना शुरू कर दोगे, उस दिन आप ट्रेडिंग में धीरे धीरे यू विल स्टार्ट बिकमिंग अ मास्टर। ठीक है, आपको प्रॉपर चांस मिलेगा, यू विल गेट चांस टू जज दिस मार्केट। अगर एडवांस बाय डिक्लाइन इज वीक, ठीक है, फिर भी मार्केट स्ट्रांग है, ऐसा तो होना नहीं चाहिए। एडवांस बाय डिक्लाइन अगर वीक है, मार्केट फिर भी स्ट्रांग है, मतलब कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। ठीक है, दिस इज समथिंग इज देयर। ठीक है ना, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसी को हम लोग, दिस इंडिकेटर इज कॉल्ड ब्रेड्थ इंडिकेटर। इतना जो राम कहानी हमने पढ़ी, इतना कुछ जाना, वो इसी को जानने के लिए जाना। दिस इज कॉल्ड ब्रेड्थ इंडिकेटर। इसी को हम लोग ब्रेड्थ इंडिकेटर कहते हैं। और एडवांस एंड डिक्लाइन हम लोग इसीलिए मॉनिटर करते हैं। मैं हमेशा 6 मंथ्स का डेटा एडवांस एंड डिक्लाइन का अपने एक्सेल सीट में फीड करता था पहले के टाइम पे। ठीक है, और फीड करके फिर उसको मॉनिटर करता था, उससे मुझे मार्केट का ट्रेंड पता चलता रहता था कि मार्केट किधर की तरफ जाएगा। मैं आपको भी सिखाऊंगा वो कैसे करते हैं इन द लेटर पार्ट। ठीक है, लाइक दिस यू हैव टू एनालाइज द मार्केट। लाइक दिस यू हैव टू एनालाइज द मार्केट। ठीक है, अब आप फिर से जाएंगे, आपके लिए आपका बाइबल है एनएससी, एनएससी की साइट पे जाएंगे। एनएससी की होम साइट पे जाएंगे, होम पे। ठीक है, ये देखिए यहां से, मस्त ये बता रहे हैं एडवांसेज एंड डिक्लाइन। देखिए 21 एडवांसेज हैं, 29 डिक्लाइन पे है। ठीक है, मस्त, यहां से एडवांसेज एंड डिक्लाइन देखिए। टॉप गेनर्स एंड लूजर्स चुनिए। मैं सच बता रहा हूं, अभी तो आप लोगों को चलो उतना अभी पता नहीं चल रहा है, सिर्फ स्टॉक में ढूंढना शुरू कर दोगे ना, डेली का 2-3-4% तो ऐसे ही खेलते खेलते बना लोगे। ठीक है, सिर्फ स्टॉक में
बाकी टेक्निकल इंडिकेटर वगैरह जान जाओगे, प्रॉपर ट्रेंड एनालिसिस जान जाओगे, सिर्फ स्टॉक में काम करोगे तो डेली का 3% 4% बना लोगे। ठीक है, इंडेक्स को छूने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। ऐसे ऐसे स्टॉक हैं जो एक एक दिन में 200 300 पॉइंट की मूवमेंट दे देते हैं। ठीक है, बस पहचानना आना चाहिए। ठीक है, इट इज लाइक दैट, है ना। तो यहां से आप एडवांसेज एंड डिक्लाइन, टॉप गेनर एंड टॉप लूजर यहीं से देखा कीजिए। ठीक है, 5 स्टॉक गेन का, 5 स्टॉक लॉस का। बस 12 बजे, 10 11 बाई 11 और 12 o'clock डेटा निकाल लो, सबका चार्ट लगाओ और सबको मॉनिटर करना स्टार्ट करो, कौन कहाँ किस लेवल पे है, कहाँ किसका ब्रेकआउट आ रहा है, कहाँ किसका ब्रेकडाउन आ रहा है। अब ये काम तो रवि रंजन करके नहीं देगा। ठीक है, चार्ट में सपोर्ट रेसिस्टेंस, डेली टाइम फ्रेम, मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर, ठीक है, उसका जो हर चीज मैं नहीं दे सकता ना, ये मेहनत आपको करनी पड़ेगी। 2 घंटे की बढ़ाई, 20 घंटे का चार्ट रीडिंग, दिस इज इक्विवेलेंट, याद रखिएगा। 2 hours ऑफ स्टडी, 20 hours ऑफ चार्ट रीडिंग, तो इक्विवेलेंट होगा, तब आपकी नॉलेज एक प्रॉपर बराबर आएगी। ट्रेडिंग इतना आसान थोड़ी है यार। ठीक है, ट्रेडिंग को जो आप अभी तक जो आप कर रहे थे वो गैम्बल था, वो जुआ, उसको जुआ बोलते हैं। ठीक है, या उसको तुक्का बोलते हैं, या उसको आपका प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। हाँ, मार्केट दिल और आत्मा बोल रही है ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा, दिल और आत्मा बोल रही है नीचे जाएगा नीचे जाएगा, तो वो गेम नहीं चलता है यहाँ। ठीक है, आप मूविंग एवरेज, लाख टेक्निकल इंडिकेटर, लाख सारी चीजें कर लो, बट आपके बेसिस जब क्लियर नहीं है तो आप कुछ नहीं कर पाओगे मार्केट में। ठीक है, तो लाइक दिस यू विल हैव टू स्टडी। जब मार्केट ऊपर जा रहा है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, व्हेन मार्केट इज गोइंग अप, अब मैं आपको जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, मार्केट इज गोइंग अप बट क्लोजिंग उसकी डाउन है, बट क्लोजिंग उसकी डाउन है, मतलब मार्केट वीक है। मार्केट क्या है? वीक है। आज मार्केट अप खुला लेकिन क्लोजिंग उसकी डाउन हुई, साफ साफ पता चल रहा है मार्केट वीक है यहां से। ठीक है, मैं हमेशा बोलता हूं, सबको बोलता हूं, आपको भी बोल रहा हूं, कुछ जानते हो नहीं जानते हो ना, बस ये मार्क करना सीख जाओ, पीडीएच, पीडीएल, क्लोजिंग और स्विंग हाई, स्विंग लो, इतना भी कर लोगे ना, 3 4% इंडेक्स में यहीं से निकाल सकते हो। खाली ये मार्क करना आ गया, और इसके बिहेवियर को फिर देखो। मार्केट कल के आज आप गौर करोगे ना, आप गौर करोगे आज, मार्केट ने आज पूरा दिन, पूरा दिन पीडीएच, पीडीएल और क्लोजिंग में बिता दिया, पूरा दिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं। पीडीएच मतलब प्रीवियस डे हाई, पीडीएल मतलब प्रीवियस डे लो, और क्लोजिंग, ये 3 लाइन तो मस्ट है। बाकी स्विंग हाई स्विंग लो कैसे कहाँ वो करते हैं, वो आपको मैं जब सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस पढ़ाऊंगा उस समय सिखाऊंगा। ठीक है, तो पीडीएच, पीडीएल एंड क्लोजिंग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको डेली मार्क करके रखना चाहिए इंडेक्स पे। इफ यू आर ट्रेडिंग इन इंडेक्स, यू शुड मार्क इट डेली। सुबह सुबह ट्रेडिंग से पहले इसको मार्क करके रख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइंस है। अगर मार्केट किसी भी समय प्रीवियस डे हाई को तोड़ के ऊपर निकल रहा है, मार्केट स्ट्रांग है, मार्केट ऊपर जाएगा, आंख बंद करके सी साइड में बैठो। अगर धोखा देगा, ब्रेकआउट फेल होगा, स्टॉप लॉस लगेगा, बात खत्म हो गई। ठीक है, 10 में से 7 बार मार्केट आपको फॉलो करेगा, 3 बार तो वो अपनी करेगा ही करेगा, उस 3 बार को बचाने के लिए आपके पास स्टॉप लॉस है। ठीक है, अब इफ मार्केट इज सम टाइम गोइंग टू ब्रेक इट्स क्लोजिंग, जहां पे क्लोज हुआ उसके नीचे आ रहा है। ठीक है, मैं कोई क्वेरी का आंसर अभी नहीं दूंगा, अभी मेरे लेक्चर को खत्म होने दीजिए। जहां पे क्लोजिंग के नीचे आ रहा है मार्केट, इन केस मार्केट इज कमिंग डाउन, उस केस में क्लोजिंग के नीचे आ रहा है, मतलब क्या, मार्केट अब वीक हो रहा है। आप देखिए मार्केट ने कल जब जहां पे क्लोज किया था उसको जैसे ही तोड़ा, ये आज मैं बता रहा हूं, कल मैं आपको चार्ट पे इसको पूरा समझाऊंगा। आज आपका होमवर्क होगा सारी चीजों को चार्ट पे देखना, जो मैंने ये कॉकपिट पे बताया, ये सारी चीजें जो बताई हैं, इसको आपको देखना है। ठीक है, आगे देखिए, जब मार्केट नीचे खुले और क्लोज ऊपर हो, व्हेन मार्केट इज ओपनिंग डाउन बट क्लोजिंग अप है, ऊपर की तरफ क्लोज कर रहा है, मतलब मार्केट क्या है, वहां पे पॉजिटिव है, स्ट्रांग है मार्केट। ये बेसिक फंडामेंटल्स हैं जो आपको ध्यान में होने चाहिए। अगर आप सिर्फ पीडीएच, पीडीएल, क्लोजिंग, ठीक है, ओपन हाई लो क्लोज हाई, एडवांस डिक्लाइन भी जान जाओगे ना, ये तो इसको कहते हैं डेटा एनालिसिस। सॉफ्टवेयर में आप कर बनते हो ना डेटा एनालिस्ट,
उस तरह से ट्रेडिंग की दुनिया में इसको ट्रेडर का डेटा एनालिस्ट बोलते हैं, डेटा एनालिसिस बोलते हैं। दिस इज द डेटा एनालिसिस विच यू हैव टू डू। और इस डेटा एनालिसिस के बेसिस पे यू आर एबल टू डेवलप योर सिक्स सेंस। कोई मूविंग एवरेज, कोई इंडिकेटर, कुछ सब बात की बात है, सब आपके सिग्नल्स को, आपके सिक्स सेंस को बस वो कंफर्म करते हैं कि हाँ ये काम हो रहा है भाई। ट्रेड सिग्नल जनरेट करके कुछ नहीं देगा आपको, दैट एवरीथिंग यू विल हैव टू डू ऑन योर ओन। ठीक है, आपको ये सब खुद करना पड़ेगा, यू विल हैव टू डू इट ऑन योर ओन वे, इन योर ओन स्टाइल। ठीक है, तो लाइक दिस इट हैज टू हैपन, ये इस तरीके से होता है। ठीक है, कीप दैट इन माइंड। ओके, हम ऐसे फिर फर्दर सारे काम को करते हैं। ठीक है, तो ट्राई टू डू द डेटा एनालिसिस, कहाँ पे मार्केट ओपन हो रहा है, वेयर मार्केट इज ओपनिंग, where market is closing, what is its high, what is its low, what is its advance and decline, where nifty is following that advance decline or not। वो ठीक है, एडवांसेज एंड डिक्लाइन वेदर दे आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर, ये सारे कॉन्सेप्ट जो मैंने बताए हैं आपको, दीज ऑल आर दी गोल्ड माइंस। ये जो हम बोलते हैं ना, यहाँ से अब पता चल रहा है मार्केट ऐसे करेगी, 6 महीना आप इस कॉन्सेप्ट पे काम करना शुरू कर दो, आप भी पहुंच जाने लगोगे मार्केट में क्या हो रहा है। 3-4 दिन पहले से पता चलने लगेगा आपको, यू विल स्टार्ट एनालाइजिंग इट, अच्छा मार्केट में अब ये हो सकता है, अच्छा मार्केट में अब ये हो सकता है, अच्छा मार्केट में अब इस तरीके की चीजें होने को रेडी बैठी हुई हैं। ठीक है, इस तरीके से फिर फर्दर आप मजे से फिर फर्दर काम कर सकते हो, यू कैन वर्क इन दिस मार्केट। ठीक है, तो आई होप टुडे सेशन वाज ब्रिलियंट, बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा, आई गारंटी इट, है ना। बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा आज आपको। ठीक है, अब इस सारी चीजों को आपको प्रैक्टिस करना है, यू हैव टू प्रैक्टिस इट। ठीक है, जस्ट ट्राई टू डू द प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन, एंड दीज थिंग्स आर गोइंग टू चेंज योर पर्सपेक्टिव, चेंज योर थॉट फॉर एवर। हर तरीके से मैं, इसमें बस एक चीज बच गई है, वो एक्सेल शीट जो बनाते हैं, वो मैं आपको थोड़ा सा लेंदी है, वो पूरा डेटा खोल के दिखाना बताना, पता नहीं वो कहाँ पड़ा है, ढूंढूंगा। अगर नहीं भी होगा तो कैसे क्या करते हैं वो एक बार समझाने की कोशिश जरूर रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे आवर मार्केट ब्रेड्थ टॉपिक फिनिशेज। नाउ वी विल स्टडी अबाउट आवर फोकस एरियाज। कल हम आवर फोकस एरियाज के बारे में स्टडी करेंगे, जिसमें हम स्टॉक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी, इनके बारे में पढ़ेंगे, ताकि हम एफ एंड ओ क्या होता है, मार्जिन मार्जिन ट्रेडिंग क्या होती है, ये सारी चीजें हम यहाँ से फिर फर्दर और डिटेल में जान पाए। ठीक है, अब आपके कुछ डाउट क्वेरी हैं, एक दो क्वेरी मैं ले लेता हूँ, उसके बाद वी विल एंड दिस सेशन। जिसके जिसके जो क्वेरी है भाई हाथ उठा लो एक एक करके। यस पवन, टेल। सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, बताओ। सर कैसे हो? अब मार्केट कैसे हो? मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, बताओ पवन, जल्दी जल्दी बताओ, फिर काम है बहुत सारा, बोलो। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि हम्म। आपको HW के लिए क्या क्या सबमिट करना होता है? ये तो वो मतलब, ये तो हम पूरे जो नोट्स वगैरह बनाते हैं वही करना है, या फिर जो आप HW देते हो वही सबमिट जब करना जब मैं बोलूंगा, जब मैं बोलूंगा सबमिट करने के लिए तब करना है, तब ऐसे नहीं करना है। ठीक है, व्हेन आई विल टेल है? देन, और हर दिन कौन का से? जो पढ़ा रहा हूँ उसका नोट सबमिट करने की जरूरत नहीं है, वो आपके आपके लिए है, वो आप अपना रेडी कीजिए। ओके। जी सर। हाँ सर, एक क्वेश्चन था, ये जो आज मैं क्या देख रहा था मार्केट को, हम्म। थोड़े एनालिसिस कर रहा था, तो उसमें एक हम्म। शब्द निकल गया है, ये एन कैरी हम्म। ट्रेड, इससे फर्क पड़ा अपने मार्केट में। क्या 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 क्या? तो ये बता, एन कैरी ट्रेड, क्या बोल रहे हो? डॉलर का कोई मतलब कोई टर्म निकल के आई थी मार्केट में, आज मैं देख रहा था इसको, वाई हाँ, एन कैरी ट्रेड, पता नहीं यार मेरे और को, डॉलर से मैं, रिलेटेड था ये। हो सकता है कुछ होगा, मैंने कभी चलो ध्यान नहीं कोई दिया ना अभी। सर। मैं देखूंगा, ठीक है। चल। ओके। जी। यस आकाश, प्लीज टेल। हेलो सर। हाँ। सर जो एडवांस डिक्लाइन रेशियो का ग्राफ था प्लस जो हम्म। गेनर्स एंड लूजर्स का है सर, वो सब तो हम्म। पास्ट डेटा दिखा रहा है, तो हाउ कैन वी दैट यूज टू ट्रेड, लाइक अभी लाइव कैसे ट्रेड होता है उससे? वो और लाइव आपने आएगा, मतलब जो स्टॉक का भी बताया। वो लाइव ओके। आएगा, जब मार्केट कल खुलेगी ना तब इस तो साइट पे दैट वी जाके कैन। काम करना। वो हाँ। लाइव इंटरसेक्शन होगा वहां पे, वो पास डेटा नहीं है, वो लाइव डेटा है। ठीक है, आप जब ओके मार्केट एंड में सर आपने बोला जो बैठेंगे स्टॉक। हाँ। हाँ। हम्म। हाँ।
जो आपने बोला जो स्टॉक्स लाइक पहले से आपको हम्म पता रहता है कि कौन से हम्म स्टॉक्स में हलचल होने वाली है, तो यू कैन इजीली हम्म मेक 4%। तो आपको हम्म। पहले से कैसे पता चल जाता है वो स्टॉक्स रात में क्या पढ़ेंगे ना, मूवमेंट रात में होगी? एनालाइज करेंगे। आज के जो टॉप गेनर्स एंड लूजर्स हैं उस सबका एक एक चार्ट खोल के देखेंगे ना, कौन कहाँ है, ब्रेकआउट पे है। मेरे से तुम पूछोगे मेरे को जो निफ्टी, अब तो मैं अभी ध्यान उतना नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन तो अगर मैं फिर से प्रॉपर सीक्वेंस में जब बैठूंगा, मुझे टॉप 10 लूजर्स और टॉप 10 गेनर्स जो हमेशा रहते हैं उनका पूरा चार्ट मेरे माइंड में है, उनका मंथली, उनका वीकली, उनका डेली, उनका सपोर्ट रेसिस्टेंस सब मेरे दिमाग में है। ठीक है, मैं और उसको प्रॉपर उसके लेवल, वो लेवल मुझे पता है कि इस लेवल को ये तोड़ देगा तो यहाँ से ये ब्रेकआउट आएगा, और मैं वहां उसको स्टॉक स्क्रीनर में ट्रेडिंग, ये जो आपका क्या बोलते हैं, जो ये ट्रेडिंग व्यू है वहां पे वो प्रॉपर दिखता रहता है मेरे को। ठीक है, वो आएगा, वो मौका आएगा, ओके वो टाइम आएगा। ठीक है। ओके सर, ओके ओके। ओके ओके। यस जतिन। हेलो, नमस्ते सर। नमस्ते जतिन, बताओ। और कैसे हो सर? मैं ठीक हूँ जतिन, बताओ। सर वो जो हम जो हम्म पीडीएच और पीडीएल प्रीवियस डे हाई लो जो मार्क करना है इंडेक्स का, हम्म। हम जो टॉप गेनर और टॉप लूजर के स्टॉक्स फाइंड करेंगे हम्म। उनका भी पीडीएच पीडीएल मार्क करना है। कर सकते हो तो अच्छी बात है, अगर कर सकते हो तो बहुत तो अच्छी बात है, नहीं तो इंडेक्स का तो कर ही करो। मोस्टली तो 80% दुनिया इंडेक्स में ही ट्रेड नहीं, करती है ना। इंडेक्स का तो सर मैं करता हूँ, पता नहीं सर आपने हाँ पहचाना है नहीं मेरे को, सर मैं तो आपके साथ बहुत टाइम हाँ से जी जुड़ा हाँ हूँ। जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। पीडीएच, हाँ, पीडीएच और पीडीएल तो इंडेक्स का तो मेरा मार्क है सर, इधर ही हाँ रहता है हाँ मार्क करता हूँ भाई। हाँ तो हाँ हाँ हाँ। स्टॉक्स का भी करना चाहिए करिए, ना, जो ये स्टॉक्स का भी गेनर कीजिए, फाइव ऑब्वियसली गेनर कीजिए। फाइव हाँ लो। हाँ, ऑफ क्या, 15 मिनट स्टॉक्स को 1 आवर पे मॉनिटर कीजिए ना। डेली चार्ट और 1 आवर चार्ट मॉनिटर वन कीजिए। आवर हाँ ठीक है, 1 डेली आवर चार्ट और वन डेली। आवर पे मॉनिटर कीजिए उसको। बाकी मैं अभी आ रहा हूँ, धीरे धीरे सब पता, सब बताऊँ। ठीक है। ठीक। ओके ओके ओके। ओके। चलिए, आई एम गोइंग टू एंड द सेशन अगेन। टुमारो बात करते हैं फिर फर्दर, जो जिसकी जो है, ऐसे ही 3 4 4 4 5 5 ऐसे डाउट ले लूंगा। बाकी फिर सैटरडे संडे डिटेल में जिसकी जो बात है वो फिर बैठ के हम लोग बात करेंगे। ओके। आई होप यू एंजॉयड योर सेशन टुडे, एंड बढ़िया से ट्राई टू मेक द नोट्स ऑन इट, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, ट्राई टू ग्रैस्प द नॉलेज, और बहुत अच्छे से इस चीज़ को सीखने की कोशिश कीजिए। ठीक है। चलिए, टेक केयर ऑफ योर्स एवरीवन। बाय।